हाय दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने टॉपिकों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जब भी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है तो वो दो तरह की न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस थी, यानी स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू देयर लाइटर न्यूक्लियाई, एंड देन during this process a huge or large amount of energy released. This energy or this reaction is uncontrolled, then it convert into the atomic bomb phenomena, and that is very hazardous to the life or to the universe or to the everythings. But nuclear reactor is the arrangement to proceed nuclear fission reaction in controlled manner. So we know very well the controlled nuclear fission process mean there is neither increase or neither increase or nor decrease the number of neutron that proceed this nuclear reaction continuously. Mean number of neutron in the new generation or in the next generation remains same as the number of neutron in the previous generation. It means that during the process of nuclear fission, uranium nuclei bombard with the neutron, solo neutron having energy 0.004 electron volt. This energy of this thermal neutron strike to the uranium they produced average 2.5 neutron in the next generation. Then excess of the neutron are controlled or absorbed by using some material, and only remains one neutron to proceed further this reaction. This type of reaction is known as the controlled fission reaction, because reproduction factor, or we can say that neutron multiplication factor, became 1. We already discussed the value of K is 1. This represent the reaction is reaction is controlled reaction. To proceed this controlled reaction, nuclear reaction, we use the arrangement, or we use a device that is known as the nuclear reactor. So nuclear reactor is the device used to proceed the nuclear fission reaction in controlled manner. So we can say that the nuclear reactor is the arrangement in which amount of energy is produced by controlled fission of the radioactive substance. We can write this is an arrangement. This is an arrangement to proceed a controlled nuclear fission process of radioactive substance and produced huge amount of energy. This arrangement is known as the nuclear reactor. There are many important part of the nuclear reactor. Important part of nuclear reactor. ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट जो कौन कौन से हैं, पहला है फ्यूल। सबसे पहली चीज चलती है कि जब भी आप रिएक्टर को स्टेबलाइज करते हैं तो आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और फ्यूल के रूप में इसमें हम यूरेनियम 235 और 238 दोनों का यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यूरेनियम कौन सा लें। ऐसा यूरेनियम लें जो नेचर में आसानी से मिल जाता हो। तो हमें ध्यान रखना है कि वी यूज material
material as a fuel in reactor is uranium-235. This is generally easily found in nature. और इसका भी एक क्रिटिकल मास होता है। क्रिटिकल मास का मतलब है कि एक वो लिस्ट मास जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करा दे, उस रिएक्शन को कंटिन्यू अप्लाई करने में, उस रिएक्शन को कंटिन्यू प्रोसीड करने में हमारा बेनिफिट करे। और भी मटेरियल हो सकते हैं यूरेनियम 235 के अलावा, पोलोनियम 239 भी इसके लिए यूज कर सकते हैं हम। दूसरी जो चीज इसमें चलेगी वो मॉडरेटर की चलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है कि जो न्यूट्रॉन हमने बम्बार्डमेंट करनी है जिस न्यूट्रॉन की, उस न्यूट्रॉन की अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो इस रिएक्शन को, फ्यूजन रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवाएगा। इसलिए हमें उस न्यूट्रॉन की एनर्जी को स्लो करना है, और स्लो करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे मटेरियल का यूज करना पड़ेगा जो उसकी एनर्जी को स्लो कर दे। मॉडरेटर क्या होते हैं? these are used in reactor to slow down the neutron, because neutron till their energy became 0.004 million electron volt. So reaction take place continuously, continuously। और इनको हम स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो मटेरियल कौन से यूज करेंगे? वी यूज ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं हम। और हम इसमें किस सब्सटेंस को यूज करते हैं? जर्नली हैवी वाटर को यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट के साथ हम किसको यूज कर सकते हैं? हैवी वाटर को। हैवी वाटर का मतलब होता है D2O। बेरिलियम ऑक्साइड को भी हम यूज कर सकते हैं मॉडरेटर के रूप में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीसरी चीज हमें जो यूज करनी है वो कंट्रोल्ड रोड यूज करनी पड़ेगी। कंट्रोल्ड रोड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता है जब रिएक्शन कंटिन्यूअसली प्रोसीड होगी तो उसमें न्यूट्रॉन है वो लार्ज निकलेंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या था कि कंटिन्यूअसली जो न्यूट्रॉन इमिट होते हैं वो न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, और जब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो न्यूट्रॉन और भी जो हमारे यूरेनियम की न्यूक्लियाई है उनको आगे क्या करेंगे? फ्यूजन प्रोसेस में ले आएंगे। अगर इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते चले गए और उसके कारण ज्यादा न्यूक्लियाई अगर फ्यूजन में प्रोसेस होती चली गई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में टेक पार्ट करती चली गई, तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू, जो रिप्रोडक्शन फैक्टर था उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, और अनकंट्रोल्ड होगी तो रिएक्टर में ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा डिवाइस या ऐसा मटेरियल इसके अंदर डाला जाए जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर ले। तो कंट्रोल रोड क्या होती हैं? दीज आर यूज्ड टू absorb excess neutron generate in nuclear fusion reaction. So we use मटेरियल के रूप में हम कैडमियम, we use material as कैडमियम रोड। हम कैडमियम रोड का यूज करते हैं, और कैडमियम रोड क्या करती हैं? उसको जो एक्सेस हमारे न्यूट्रॉन जनरेट हुए हैं उनको क्या कर देती हैं? ये एब्जॉर्ब कर देती हैं। तो कैडमियम रोड है ये बेस्ट एब्जॉर्बर होती हैं,
और ये एक्सेस ऑफ जो हमारे न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को कंट्रोल कर लेती हैं। और इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि दे हेल्पफुल टू मेंटेन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू को 1 कर देती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स भी लिख सकें, क्योंकि नोट्स भी लिखने पड़ेंगे। 12th में जो बच्चे हैं उनको जब ये टॉपिक पूछा जाए तो उसको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, तो आप इस तरीके से इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, आप नोट्स लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे एक मटेरियल और यूज होता है जिसको हम नाम देते हैं कोलेंट। तो कोलेंट क्या होते हैं? कोलेंट एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है, इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। उस एनर्जी को क्या करेंगे, वो उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। और एनर्जी को जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम जानते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म। तो अब क्या किया जाएगा, हम कोलेंट के रूप में मटेरियल यूज करेंगे। तो फोर्थ जो हमारा मटेरियल जो इसमें मेन पार्ट है वो है कोलेंट। ये कोलेंट क्या काम करता है? कोलेंट का काम होता है जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है उस एनर्जी को बाहर लेके जाना है, यानी इट इज यूज्ड टू टेक आउट एनर्जी फ्रॉम रिएक्टर। we use cold water, लिक्विड नाइट्रोजन। हम इसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो कोल्ड वाटर यानी हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम कोई मेटल यूज कर सकते हैं जो लिक्विड की फॉर्म में। इसके लिए कोल्ड H2O, हैवी वाटर D2O, और एयर के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन को भी यूज किया जा सकता है। वी यूज कोल्ड वाटर, हैवी वाटर, नाइट्रोजन ETC फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो हीट एनर्जी थी उस हीट एनर्जी से, जैसे वाटर का एग्जांपल ले ले, वाटर एनर्जी क्या करेगा, उस हीट एनर्जी को लेगा, भाप में बदल जाएगा, स्टीम में चेंज होगा। वो स्टीम इतनी फास्ट स्टीम होती है और टरबाइन के ब्लेड से वो टकरा जाएगी। जब टरबाइन के ब्लेड से वो ऊपर वो बम्बार्डमेंट करेगी, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो टरबाइन को रोटेट कर देगी। और जब टरबाइन रोटेट होगी तो अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड EMF इंड्यूस्ड होगा और वो वोल्टेज बन जाएगी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और 5 नंबर पे फिनोमिना आता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होनी है उससे तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, हार्मफुल रेडिएशन जनरेट होती हैं। और जब हार्मफुल रेडिएशन जनरेट होंगी तो इस पे काम करने वाले के हेल्थ का तो इश्यू रहेगा ना। उस हेल्थ इश्यू को मेंटेन करने के लिए वहां जो काम करते हैं उसकी सेफ्टी भी जरूरत है। तो सेफ्टी के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेफ्टी वॉल का यूज करते हैं, जिसको हम सील्डिंग मटेरियल बोलते हैं। तो एक काम चलेगा नंबर 5 पे, सील्डिंग मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम सेफ्टी वॉल भी बोलते हैं। सील्डिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना किसी एक्सटर्नल कॉज से, उसको बोलते हैं सील्डिंग। जब आपने इसको फेराडे केज फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी भी होती है, तो यहां भी ये सील्डिंग स्टैंड करता है इसी के लिए। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम harmful radiation, this reactor covered by thick concrete wall of thickness 1.5 meter to 5 meter
5 मीटर अप्रोक्सीमेट। इससे क्या होता है कि इतनी मोटाई की दीवार बनाने का पर्पज यही है कि इससे जो हार्मफुल रेडिएशन निकली है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाती। और जब वो इसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाती तो इसका मतलब है कि जो बाहर इस पे जो काम करेंगे कोई उनके हेल्थ का कोई इश्यू नहीं रहेगा। और ये इस तरीके से आप इसके 5 मेन पार्ट होते हैं जब भी आप किसी रेडियो एक्टिव रिएक्टर को, न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टेबलाइज करते हैं। तो इस तरह के हमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के आप 5 मेन कंपोनेंट में मेन पार्ट यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाते हुए। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना लें, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करता हूं। इसका नोट्स बना लें आप। इसके यूज क्या क्या हो सकते हैं, यूज के ऊपर बात चलती है कि यूज क्या है इसके। सबसे बड़ा यूज है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा इसका यूज क्या है, जो सेकंड मेजर यूज मैं बता देता हूं, टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप that are used in agriculture, biology and research. रिसर्च में भी इसका यूज करते हैं, रिसर्च ETC। तो जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना सकते हैं। और एक चीज और आती है इसकी कि एटॉमिक बम बनाने में भी इसका यूज होता है। वो हालांकि हार्मफुल इफेक्ट है, बहुत अच्छा यूज नहीं है, लेकिन है तो है। जब इसका यूज होता है, इसका अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, तो एटॉमिक बम प्रोड्यूस करता है, बम बनाने में भी इसका यूज होता है। राजस्थान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। और सरकार ध्यान भी दे रही है कि और भी न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेबलाइज किया जाए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है वो इससे जो हमारा वेस्टेज जो निकलता है उसका निपटान थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस हिसाब से थोड़ा सा इसके वेस्टेज को डिस्चार्ज करने की बड़ी समस्या है, क्योंकि जो इसका वेस्टेज जनरेट होता है उस वेस्टेज में हार्मफुल रेडिएशन होती है, वो लंबे टाइम तक एक्टिव रहती हैं। और लंबे समय तक एक्टिव रहती हैं तो उसको रखें कहाँ, उसका हम डिस्चार्ज कहाँ करें। तो ये एक इसके अंदर समस्या है, बाकी इसके बेनिफिट है। तो इस तरह का आपका टॉपिक आ जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से नोट्स बना लें। तो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड टॉपिक था।